students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, in computer we are going to start our next chapter, which is MS Excel working with worksheet. इस चैप्टर में हम जानेंगे कैसे हम वर्कशीट में अपने डेटा को एडिट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं. So let's start the chapter MS Excel working with worksheet. Things to learn: editing data in a worksheet, editing cell contents, wrap text and merge and center, using autofill feature, using flash fill feature. Robo: hi Adi, what's up? Adi, I have made a table in MS Excel. Now I want to add 2 rows in between this table. How to add? Please help me, Robo. Robo: this is very easy, Adi. Let me tell you how to edit and format data in Excel. Adi, please tell me. I am very excited to learn. तो इस चैप्टर में बेसिक हम जानेंगे कैसे हम अपने डेटा को एडिट और फॉर्मेट करते हैं. MS Excel is an electronic spreadsheet program that is a part of a Microsoft Office suite. Of using MS Excel, we can perform various calculations and also analyze data in different ways. The advantage of using electronic spreadsheet over pen and paper is that we can change formula and the calculation are updated automatically. तो पहले के टाइम पे हम लोग क्या करते थे, हम जो भी शीट होती थी अपने पेपर पे बनाते थे, अपने डेटाज वगैरह उस पर हम लिखते थे. तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाता था, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था, क्योंकि इसमें में कैलकुलेशंस वगैरह भी करनी होती थी. और अगर कोई चेंजेस हमें करने हो, कोई नंबर हमें हटाना हो, तो वो बड़ी मुश्किल से होता था. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो आपका प्रोग्राम है, इसमें आप ना सिर्फ अपनी स्प्रेडशीट बनाते हो बल्कि आप उसको एडिट मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. Now that you have learned the elementary concepts of MS Excel 2016, let us learn how to make an Excel sheet look more presentable and attractive using various editing feature. अब यहाँ पे जो एडिटिंग फीचर आपको मिलते हैं आपके एक्सेल प्रोग्राम में, इसके थ्रू आप अपनी एक्सेल शीट को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हो और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो. Editing data in a worksheet, changing data entered into a worksheet or making correction to the data is called editing. तो जो भी आप चेंजेस वगैरह करते हो अपनी वर्कशीट में या अपनी शीट पे, वो आपका एडिटिंग कहलाता है. Let's learn about some ways to edit data in a worksheet. अब हम जानते हैं कैसे, किन किन तरीके से आप अपने स्प्रेडशीट में या वर्कशीट में अपने डेटा को एडिट करते हो. Selecting cells, you need to select a cell or range of cells to edit, copy or move cell contents. A given table will help you to learn the various methods of selection. तो जिस भी सेल का आप डेटा एडिट करना चाहते हो, सबसे पहले आपको उस सेल या रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अ रो कॉलम, क्लिक द रो कॉलम हेडिंग. अगर आप रो या कॉलम को, पूरे रो को, पूरे कॉलम को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसकी हेडिंग में क्लिक करेंगे. एंटायर वर्कशीट, प्रेस Ctrl+A और क्लिक द सेलेक्ट ऑल बटन लोकेट ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट रो हेडिंग. पूरी की पूरी शीट को सेलेक्ट करने के लिए आप Ctrl+A अपने कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे या फिर आप ऑल बटन जो कि आपके टॉप पे लोकेट होगा उसको आप प्रेस कर सकते हैं. Adjacent rows and columns, select the first row column, then hold down the shift key while you select the last row column. अगर आपको adjacent columns को या rows को select करना है तो आप सबसे पहले first row या column को select करेंगे, then आप shift key को press करके जाएंगे वहाँ तक जहाँ तक आपको rows and columns को select करना है. Non-adjacent rows columns, click the rows column, then hold down the control key while you select the other rows columns for selection. Editing cell contents, when you type the new data in the cell, the 2 buttons cancel and enter present on the left of the formula bar become active. Press either the enter key or the enter button on the formula bar to accept the entry. Otherwise, press the cancel button to cancel your entry. To modify the existing cell contents, you can use any of the following 2 methods. Overwriting, to completely change the contents of the cell, select the cell and type the new data, press the enter key. अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपने सेल कंटेंट को एडिट कर सकते हैं. जैसे ही आप कोई भी डेटा अपने सेल में टाइप करते हैं तो आपके 2 बटन जो कि कैंसिल होता है और एक एंटर होता है, ये आपके एक्टिव हो जाते हैं फॉर्मूला बार में. ठीक है, तो अगर आपको आपके नेक्स्ट सेल पे जाना है, आपने डेटा टाइप कर लिया तो आप नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए एंटर प्रेस करेंगे. अगर आपको उस डेटा को डिलीट करना है, कैंसिल करना है, तो आप कैंसिल बटन प्रेस करते हैं.
Partial modification to partially change the contents of the cell. Select the cell, double click inside the cell or click in the formula bar or press F2 key. The cursor will appear at the end of the content of the cell. And now move the cursor with the help of the navigation keys to where you want to make the changes. Change the data and press the enter key. आप पार्शियल मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। पार्शियली मॉडिफिकेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले सेल कंटेंट को सेलेक्ट करते हो, फिर आप इस पर क्या करते हो, डबल क्लिक करते हो इनसाइड द सेल, या फिर आप फॉर्मूला बार पे क्लिक करते हो, या फिर आप F2 की फंक्शन की जो है आपकी उसको आप प्रेस करते हो, तो आपका जो कर्सर है वो अपीयर हो जाता है एट द एंड ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल। नाउ आपको क्या करना है, अपने कर्सर को मूव करना है विद द हेल्प ऑफ नेविगेशन की। नेविगेशन कीज आपको पता ही है जो अपराइट आपकी होती हैं। फिर इनको आप वहां तक लेकर के जाएंगे, नेविगेट करेंगे जहां पे आपको अपना जो डेटा है उसको एडिट करना है। देन उसके बाद जैसे आप अपना डेटा चेंज करेंगे उसके बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे। Now deleting cell contents. To delete a cell, follow these steps. Step 1, select the cell containing the data to be deleted. Step 2, open the home tab. In the editing group, click the clear button. A drop down menu appears. Step 3, select the clear contents option from the menu. The selected data will disappear from the deleted cell, or you can also press the delete key on the keyboard after selecting the range of remove to the cell contents. Step 4, you can also use clear contents option from shortcut menu by right clicking on the selected cell. अब यहाँ पे आपको सेल कंटेंट को डिलीट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको सेल को सेलेक्ट करना होगा जिसका डेटा आप डिलीट करना चाहते हैं। देन आप होम टैब पे जाएंगे और एडिटिंग ग्रुप में आप क्लिक करेंगे क्लियर बटन को। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू नजर आ जाएगा जिसमें आप सेलेक्ट करेंगे क्लियर कंटेंट को, जो कि आपको मेन्यू में से ऑप्शन नजर आ जाएगा। आपका जो सेलेक्टेड डेटा है वो डिसअपियर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। या फिर एक और तरीका है आपके पास, आप जाकर के डिलीट की प्रेस करेंगे ऑन द कीबोर्ड आफ्टर सेलेक्टिंग द रेंज ऑफ, जिसको भी आप रिमूव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने उसको सेलेक्ट किया, देन आप डिलीट की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे, तो आपका जो डेटा है वो क्लियर हो जाएगा। आप अपने कंटेंट को क्लियर कर सकते हैं कि आपको शॉर्टकट मेन्यू में नजर आ जाएगा जैसे ही आप उस सेल पे जाकर के सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे। You should know to clear only the formatting applied to cell. Choose the clear format option. To clear data formatting and comments applied to a cell, select the clear all option. अगर आपको अपनी फॉर्मेटिंग को क्लियर करना जो आपने सेल पे अप्लाई की है, तो आप क्लियर फॉर्मेट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। Copying and moving cell contents. We can use the cut, copy and paste commands in Microsoft Excel to move or copy entire cell content. When we use the cut command, the content is moved to the new place and removed from its original place. In the case of copy command, content is copied at the new place and also exists in its original place. The paste command is used to paste the copied cut data. When you move or copy a cell, Excel moves or copy the entire cell content and the cell formatting. अब आप अपने डेटा को कॉपी, कट और पेस्ट भी कर सकते हो। कट का मतलब होता है आपको अपने डेटा को उसकी ओरिजिनल पोजीशन से दूसरी जगह पे क्या करना है, मूव करना है। ठीक है, तो वो दूसरी जगह मूव हो जाता है लेकिन उतने ओरिजिनल प्लेस से वो बिल्कुल हट जाता है। कॉपी का मतलब क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो ओरिजिनल जगह पे तो रहेगा, उसकी कॉपी दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाएगी। और पेस्ट का मतलब आपको पता ही है, ये कॉपी कट दोनों ही सिचुएशन में काम आता है। Copying data. The duplicate copies of the data can be created in Excel by using copy and paste method. To copy data, use the following steps. Step 1, select the cells to be copied and click on Home tab. Step 2, click on Copy button. From the clipboard group, a dash box appears around the cell. Step 3, select the cells where you wish to paste the content. Step 4, click on Paste button on the Home tab. From the clipboard group, data appears at new location. तो पहले हम जान लेते हैं कैसे आप अपने डेटा को कॉपी करते हैं। ठीक है, आपको सेल को सेलेक्ट करना है जिसका भी आप डेटा कॉपी करना चाहते हैं। देन आप होम टैब पे जाएंगे, फिर आप कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे जो कि आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप पे नजर आ जाएगा। एक डैश बॉक्स अपीयर हो जाएगा अराउंड द सेल। ठीक है, उसको वो क्या करेगा, सेलेक्ट कर देगा, यानी कि आपका जो डेटा है वो क्या होने वाला है, कॉपी होने वाला है। आपको सेलेक्ट करना है सेल जहाँ पे भी आप अपने कंटेंट को पेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आप पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे जो कि अगेन आपको होम टैब पे मिल जाएगा फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप। आपका जो डेटा है वो न्यू लोकेशन पे अपीयर हो जाएगा। मूविंग डेटा भी जान लेते हैं। डेटा कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन एक्सेल शीट बाय यूजिंग कट एंड पेस्ट method. To move the data, use steps given on the next page.
Step 1, select the cells to be moved and click on Home tab. Step 2, click on Cut button from the clipboard group. A dash box appears around the cell. Step 3, select the cell where you wish to paste the content. Step 4, click on Paste button on the Home tab from the clipboard group. Step 5, data appears at new location. मूव करने के लिए अगेन आपको उस सेल को सेलेक्ट करना है जिसका डेटा आप मूव करना चाहते हैं. देन आप कॉपी की जगह कहाँ जाएंगे, कट बटन पे जाएंगे जो आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप में नजर आ जाएगा. उसके बाद आप वहां पे जाएंगे जहां पे आप उस डेटा को मूव करना चाहते हैं. ठीक है, जब आप वहां पे पहुंच जाएंगे तो आपको पेस्ट बटन पे क्लिक करना है जो अगेन आपको होम टैब पे मिल जाएगा. उसके बाद आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो वहां से डिसअपियर होकर दूसरी जगह क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, कॉपी हो जाएगा. Quick tips: use Ctrl+C to copy text, use Ctrl+X to cut text, use Ctrl+V to paste the text. अब यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट कीज भी बताए गए हैं. इतना लंबा प्रोसेस ना यूज करके आप इन शॉर्टकट कीज को भी प्रेस कर सकते हो अपने डेटा को कॉपी, कट और पेस्ट करने के लिए. Now inserting rows and columns to the worksheet. At times while entering data, you may miss out certain entries. In such situations, you may have to insert some cells, columns or rows in the worksheet to accommodate the new data. Let us learn how it can be done. अब आप अपनी वर्कशीट में सपोज आपने कोई डेटा डालना आप भूल गए हो, कोई रो आप इंसर्ट करना भूल गए हो, तो उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप इजीली अपनी रोज को, कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी डेटा के बीच में कभी भी. इंसर्टिंग सेल्स. टू इंसर्ट अ सेल यूज द फॉलोइंग स्टेप्स. Step 1, select the cell where you want to insert a new cell. Step 2, click on Home tab. Step 3, in cells group, click on drop down arrow of insert option. Step 4, click on Insert Cells option. Step 5, the insert box appears. Here select the required option. Shift cell right if shift the selected cell right to insert new cell. Shift cell down, it is shift the selected cell down to insert new cell. The cell will appear as per your selection. अब आपको अगर सेल इंसर्ट करनी है तो उसके लिए आप उस सेल पे जाएंगे जहाँ पे आपको न्यू सेल इंसर्ट करनी है. देन आप होम टैब पे जाएंगे. सेल्स ग्रुप में आप ड्रॉप डाउन एरो पे जा करके इंसर्ट ऑप्शन को चूज करेंगे. इंसर्ट सेल ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे. इंसर्ट बॉक्स अपीयर हो जाएगा जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड ऑप्शन पूछे जाएंगे कि आपको सेल जो राइट पे शिफ्ट करना है या फिर डाउन शिफ्ट करना है, लेफ्ट, इस तरीके से आपसे ऑप्शन पूछे जाएंगे. तो आपको डिजायर ऑप्शन को सिलेक्ट करके ये प्रोसीजर कंप्लीट करना है. Quick tips: Excel will insert the same number of columns, rows or cell as you select in the worksheet. Now inserting columns and rows. To insert a column or row, follow these steps. Step 1, select the column or cell to the left of which a new column is to be inserted. Here you have selected column D. Step 2, click on the drop down arrow of the insert button in the cells group on the home tab and choose the insert sheet columns option. Excel inserts a blank column to the left of column D, that is column C, and shifts the entries of column D and D to E. Step 3, you can insert a row in the same way as you insert a column. Select the row or cell above which a new row is to be inserted and choose Insert Sheet Rows from the options of Insert drop down menu in the cells group. अब हम जान लेते हैं कैसे हम कॉलम्स और रोज को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं. आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है कॉलम या फिर सेल को जहाँ पे आप चाहते हैं एक न्यू कॉलम ऐड करना. ठीक है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है कॉलम डी को. देन आपको क्लिक करना है ड्रॉप डाउन एरो पे ऑफ द इंसर्ट बटन्स जो कि आपको सेल ग्रुप में नजर आ जाएगा होम टैब के. एंड आपको चूज करना है इंसर्ट शीट कॉलम ऑप्शन को. एक्सेल इंसर्ट करेगा एक ब्लैंक कॉलम टू द लेफ्ट ऑफ द कॉलम डी, दैट इज कॉलम सी, और शिफ्ट करेगा आपकी एंट्रीज को डी से कहाँ पे, ई पे. आप एक रो को भी इंसर्ट कर सकते हैं इसी तरीके से. जहाँ पे भी आपको अपनी नई रो इंसर्ट करनी है उस रो के पास आप सेलेक्ट करेंगे. देन आप जाएंगे अपने इंसर्ट शीट रो पे जो कि आपको इंसर्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू में नजर आ जाएगा और जो आपको सेल्स ग्रुप में दिख जाएगा. Quick tips: select the row or column header and press Ctrl++ to insert a row or column. तो ये आप शॉर्टकट की को प्रेस करके भी कर सकते हैं. Now deleting rows, columns. In Excel, columns, rows or cells can be deleted if they are not required in the sheet. Let us know how to delete them from worksheet.
To delete any column or row from the worksheet, follow the given steps. Step 1, select the column to be deleted by clicking on its header. Step 2, click on the delete drop-down menu in the cells group on the home tab and select the delete sheet option, column option, or right click in the header of the selected column and choose the delete option from the context menu. Step 3, you can delete a row in the same way as you delete a column. Right click on the row header and choose the delete option. अब हम जान लेते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा रो आपके पास आ गई है या बन गई है, कॉलम या रो, उनको आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले कॉलम को सेलेक्ट करना है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, उसके हेडर पे आप क्लिक करके फिर आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन डिलीट ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाएंगे और सेल्स ग्रुप पे जाकर के आप उस शीट को, उस कॉलम शीट को आप डिलीट करेंगे। या फिर आप राइट क्लिक कर सकते हैं इन द हेडर ऑफ द सेलेक्टेड कॉलम और फिर आप चूज करेंगे डिलीट ऑप्शन को फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, तो आपका कॉलम जो है डिलीट हो जाएगा और इसी तरीके से आपको अपनी रो भी जो है डिलीट करनी है। क्विक टिप, सेलेक्ट द रो कॉलम हेडर एंड प्रेस Ctrl+- टू डिलीट अ रो कॉलम। तो इसको आप शॉर्टकट की को भी प्रेस करके कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपने क्या किया था, Ctrl++ का साइन आपने दबाया था। डिलीट करने के लिए आप Ctrl+- प्रेस करेंगे ताकि आपकी रो या कॉलम डिलीट हो जाए। नाउ चेंजिंग कॉलम विड्थ एंड रो हाइट। On a worksheet, you can specify a column width of 0 to 255 and a row height of 0 to 409. This value represents the number of characters that can be displayed in a cell that is formatted with the standard font. The default column width is 8.43 characters and the default row height is 15 points. If a row column has a width or height 0, it is hidden, i.e. it is not visible in the grid. To set column width or row height, follow the given steps. अब कभी कभी क्या होता है, हमारा कंटेंट जो होता है हमारे रोज में या हमारे कॉलम्स में काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमको रो की विड्थ या उसकी हाइट को भी बढ़ाना पड़ता है। जैसे आपके जो एड्रेस वगैरह होते हैं या स्टूडेंट के बड़े बड़े नाम वगैरह होते हैं, तो उनको बनाने के लिए, उनको लिखने के लिए हमको हमारे रो की हाइट या कॉलम की हाइट को बढ़ाना होता है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें दिए गए हैं। स्टेप 1, सेलेक्ट द कॉलम और रो whose width or height you want to change. Step 2, click on format command in cells group from the home tab. Step 3, choose column width or row height under cell size section from the drop down list. A column width or row height dialog box will appear. Step 4, in the column width or row height box, type the value that you want your column or row to be. इसके लिए सबसे पहले आप उस रो या कॉलम को सेलेक्ट करेंगे जिसकी हाइट या विड्थ आप चेंज करना चाहते हैं। देन आप फॉर्मेट कमांड पे क्लिक करेंगे इन द सेल्स ग्रुप, जो आपको होम टैब पे मिल जाएगा। इसके बाद आपको चूज करना है कॉलम विड्थ और रो हाइट को, जो कि आपको सेल साइज सेक्शन में मिल जाएगा। एक कॉमन कॉलम विड्थ और रो हाइट डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। इसमें आपको मेंशन करना है कॉलम विड्थ और रो हाइट, ठीक है। उसकी वैल्यू आप जैसे डाल देंगे तो आपकी जो रो या फिर कॉलम है उसकी हाइट सेट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू यू। रैप टेक्स्ट एंड मर्ज एंड सेंटर। You can display multiple lines of text inside a cell using wrap text feature. Wrapping text in a cell does not affect other cells. Step 1, click the cell in which you want to wrap the text. Step 2, click on wrap text command from alignment group under home tab. The text in your cell will be wrapped. अब आप अपने टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं, उन्हें मर्ज कर सकते हैं, उन्हें सेंटर पे ला सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम रैप टेक्स्ट सीख लेते हैं। रैप टेक्स्ट क्या होता है, आपका जो टेक्स्ट वगैरह होते हैं जो आपके सेल में लिखे होते हैं, कभी कभी इतने बड़े हो जाते हैं कि उनकी लाइन बिल्कुल आगे तक चली जाती है, तो वो दूसरे सेल को इफेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे ही आप रैप टेक्स्ट कमांड पे क्लिक करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो अलाइन हो जाता है उसी बॉक्स के, उसी सेल के अंदर, और वो दूसरे सेल्स को इफेक्ट नहीं कर रहा होता। क्विक टिप्स, यूज Alt+Enter टू रैप टेक्स्ट। इसके लिए आपको यहाँ पे शॉर्टकट की भी दी गई है। Now merge and center joins or merges the selected cells into one cell. The text is placed in the center of the cell. This is used to create labels that span multiple columns. To split the merged cells, click the unmerged cells option from the merge and center drop down list. तो यहाँ पे आप अपनी वर्कशीट को क्या कर सकते हैं, उसके सेल्स को आप मर्ज भी कर सकते हैं, उनको स्प्लिट भी कर सकते हैं। थिंक एंड शेयर, डू यू थिंक मर्ज एंड सेंटर इज अ यूजफुल फीचर, वाई? तो आपको इसका रीज़न देना है कि ये इतना यूजफुल फीचर क्यों है।
Using autofill feature, the autofill feature of Excel is used to quickly fill a predefined series of data such as text or numbers in a worksheet. For example, we can fill the days of a week, months of a year, numbers in a pattern using the autofill. When we move the mouse pointer to the lower right corner of the selected cell, the mouse pointer shape changes to a plus shape. This is called the fill handle. We just need to drag the fill handle to use the autofill feature. To create a numeric data series, follow the given steps. अब कभी कभी क्या होता है, हमें मंथ्स के नाम लिखने होते हैं, वीक्स के नाम लिखने होते हैं, तो इनको लिखने के लिए हम ऑटोफिल फीचर का इस्तेमाल करते हैं. Step 1. Enter the first two values of data into two adjacent cells and select both the cells. Step 2. Click the fill handle present on the lower right corner of the selected cells and drag it to enclose the desired area to be filled with the series of numbers. To create a days series, follow the given steps. Step 1. Enter the date first value of the day in a cell and press the enter key. Select the cell. Step 2. Drag the fill handle to enclose the desired cells to be filled with the series. अब यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं. आपको उन डेटा की पहली दो वैल्यूज़ को टाइप करना है, फिर आपको क्या करना है, क्लिक करना है फिल हैंडल पे जो कि प्रेजेंट है आपके ऑन द लोअर राइट कॉर्नर, ठीक है, ऑफ द सेलेक्टेड सेल. इसको आपको ड्रैग करते हुए जैसे आप नीचे लेके जाएंगे तो आपके देखोगे आपके जो नंबर्स हैं या आपके जो सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली फिल होते हुए जाएंगे. अगर आपको डेज सीरीज को फिल करना है तो आप फर्स्ट 2 डेज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मंडे ट्यूसडे, आपने जैसे फिल किया फिर आप ड्रैग करके फिल हैंडल को लेके जाएंगे ताकि आपकी जो पूरी की पूरी लिस्ट है या जो पूरी सीरीज है उस डेज की या वीक की वो आ जाए. Conceptual learning. Perform the following task. Create a numeric data series from 71, 73, 75, 77, 79, 81 in cells starting from D2 to D7 using autofill feature. Create a month series starting from January. तो ये सब टास्क आपको इसमें परफॉर्म करने हैं. Now creating custom list. You might have a list that is very often used. Instead of typing your own list called custom list and use it with the autofill feature, Excel allows you to fill a range of cells with the days of the week, and you can add a list with autofill features which is frequently used by you. Instead of typing the list each time, you can add the list using edit custom list option and use it with autofill feature. Steps to add a list with autofill features are: step 1, click on the file tab, more and options, the Excel open dialog box appears. Step 2, click on advanced option in the left pane, the related options are displayed in the right pane. Step 3, in the right pane, scroll down the page to general section and click on edit custom list button. The custom list dialog box appears. Step 4, in the list entries box, type the new list. Step 5, click on add button, the enter list appears in the custom list box. Step 6, click on OK button to close the custom list dialog box. Step 7, click OK to close the Excel options dialog box, and now you can use the autofill features to fill the selected range of cells with your custom list. अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप लिस्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, उन्हें क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है. इसके लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए गए, उनको हम फॉलो कर लेते हैं. सबसे पहले आप फाइल टैब पे जाएंगे, देन मोर एंड देन आप ऑप्शंस पे जाएंगे. आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. इसमें आपको क्लिक करना है एडवांस ऑप्शन को, जो कि आपको लेफ्ट पैन में नज़र आ रहा होगा. इसके बाद आप राइट पैन पे जाकर के स्क्रॉल डाउन करेंगे टू द पेज जनरल पेज सेक्शन, और यहाँ पे आप एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करेंगे. देन आपके सामने कस्टम लिस्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. यहाँ पे आपको लिस्ट एंट्री बॉक्स पे टाइप करनी है न्यू लिस्ट, ठीक है, और यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो कस्टम लिस्ट है वो आपकी लिस्ट में जो दूसरी लिस्ट है उसमें वो ऐड हो जाएगी. देन आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे टू क्लोज द कस्टम लिस्ट डायलॉग बॉक्स. अगेन आप ओके पे क्लिक करेंगे ताकि जो एक्सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स है वो भी क्या हो जाए, क्लोज हो जाए. अब आप देखेंगे आपकी ऑटोफिल फीचर जो है वो उस लिस्ट के साथ वहाँ पे विजिबल हो रहा होगा. Using flash fill features, flash fill is a great Excel tool. Flash fill automatically extract data, combine data and much more. Flash will identify the data fill pattern and then fill the remaining series accordingly. Flash fill in Excel only works when it recognizes a pattern. Use flash fill in Excel to extract the numbers in column A below. First, tell Excel what you want to do by entering the value 4645 into cell B1.
Second, on the data tab in the data tools group, click flash fill. Flash Excel flash fill would automatically fill all the cells with the numbers from the data set. अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फ्लैश फिल फीचर को आप अप्लाई कर सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्लैश फिल जो है ग्रेट एक्सेल टूल माना जाता है। इसमें फ्लैश फिल जो है ये ऑटोमेटिकली आपके एक्सट्रैक्टेड डेटा को क्या करता है, कंबाइन करता है और आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। ये साथ ही साथ आपके डेटा फिल पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है और फिर जो रिमेनिंग सीरीज़ हैं अकॉर्डिंगली उनको भी क्या करता है, फिल करता जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्सेल को बताना है कि व्हाट यू वांट टू एंटर बाय द वैल्यू 4656, ठीक है। तो आपने सेल B1 जो है इसमें आपने अपनी एंट्री डाली। देन आप डेटा टैब में जाएंगे इन द डेटा टूल्स ग्रुप और क्लिक करेंगे फ्लैश फिल को। इसके बाद एक्सेल फ्लैश फिल जो है ये आपकी एंट्रीज को ऑटोमेटिकली फिल करना शुरू कर देगा। क्विक टिप्स टू यूज फ्लैश फिल इन एक्सेल वाज Ctrl+E. Now conceptual learning from the information given below. Extract a city from address using flash fill of Excel. तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो आपको दी गई इसमें से आपको क्या करना है, सिटी फ्रॉम एड्रेस को एक्सट्रैक्ट करना है फ्लैश फिल जो फीचर है उसको यूज करके। क्रिटिकल थिंकिंग वाई वी यूज फ्लैश फिल फीचर ऑफ एक्सेल। तो आपको बताना है जो एक्सेल का फ्लैश फिल फीचर वो क्यों यूज किया जाता है। Tricky terms, editing, changing data entered into a worksheet or making corrections to the data. Wrap text, display multiple lines of text inside a cell. Autofill, used to quickly fill a predefined series of data such as text or numbers in a worksheet. Flash fill, identify the data, fill pattern and then fill the remaining series accordingly. सो चिल्ड्रन इस चैप्टर में हमने अपने जो शीट है, वर्कशीट है, उस पर काम करना सीखा, एडिटिंग वगैरह करनी सीखी और उसे मॉडिफाई करना सीखा। सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. नाउ यू विल रिवाइज द चैप्टर एंड प्रैक्टिस द गिवन एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड द चैप्टर थॉरोली.